Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today's lecture will be a very simple interpretations of ECG, a few things which every even student can interpret the ECG. So simple interpretation of electrocardiogram. But before everything, one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. और ये दुनिया की जिंदगी तो मास खेल तमाशा है. ये दुनिया की जिंदगी एक मास खेल तमाशा है. आर्जी सी एक जिंदगी है, खेल तमाशा जैसे खत्म हो जाने वाली चीज होती है. दार आखिरत हयवान, और असली जिंदगी तो वही आखिरत की जिंदगी है. आखिरत की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है कि उसमें जो मजे हैं, उसमें जो कामयाबी है या उसकी जो नाकामी है वो भी हमेशा की है. तो असली जिंदगी जो आखिरत का घर है ना, वो जिंदगी हकीकी है. उसको बनाने की फिक्र होनी चाहिए हमें. ये दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशे की तरह गुजर जानी है. कोई खेल तमाशा हम देखने जाते हैं, चंद लम्हों का होता है, चंद घंटों का होता है, चंद मिनटों का होता है, दैट्स ऑल. और ये दुनिया की जिंदगी भी, लेकिन हमने आखिरत की जिंदगी को देख कर उसको सामने रख कर ये जिंदगी गुजारनी है. काश ये जानते होते हम. ये अगर ये जान लें तो फिर हम अपनी आखिरत की जिंदगी की फिक्र करके जिंदगी गुजारेंगे. अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. So we will discuss the interpretation of ECG. Here, one interpretation is here. This is passing, this is isoelectric line, P wave is being depolarized, QRS complex, and then this is ST segment, and then again isoelectric line. This is the sequence of production of ECG waves. General rules for interpretation, one thing, a few things we should know, all know, that is, current always flows from the negative area to positive area, from the depolarized area to polarized area. Depolarized area is negative outside. Negative outside. We are recording from outside, so it is negativity outside. So current flows from the depolarized area, which is negative, to the polarized area, positive. One principle. Positive wave will be recorded if the current is flowing towards the electrode. रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है. लास्ट लेक्चर में भी हमने AVR स्पेशल फॉर एग्जांपल, if we are recording AVR, the recording electrode is here and we know predominantly the direction of the flow of the current is this direction. So this is against the recording is away from the current is flowing away from the recording electrode. So positive wave will be recorded if the current is flowing towards the electrode or in the axis की direction में. And negative wave will be recorded if it is flowing away from the electrode or opposite to the axis. Cardiac इसका axis तो यूं है, current is flowing, current नहीं, इसका axis तो यूं है, current is flowing away from. Positive is this, axis is from here to here. AVR की बात कर रहे हैं. एक्सिस तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है एंड एक्सिस ये है, लेकिन इट इज रिकॉर्डिंग हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखा हुआ है, तो इट इज अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. करंट हार्ट की तो इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने यहाँ रखा हुआ है, तो इट इज अगेंस्ट दी negative wave will be recorded if it is flowing away from an electrode or opposite to the axis. Voltage recorded will be maximum in leads whose axis lies along the direction of the resultant vector. हमने बाइपोलर लीड की एग्जांपल मैंने उठाई थी ये फैक्ट बताने के लिए. बाइपोलर, इफ द करंट इज कार्डियक एक्सिस का मीन एक्सिस इज 59 डिग्री, और अगर 59 डिग्री वाला एक्सिस अगर रिप्रेजेंट होना है
60 डिग्री वाले जो है ऑलमोस्ट पैरेलल हैं दोनों, उस पर मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होगी, इसलिए लीड 2 में मैक्सिमम QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, आपने देखा होगा ECG में। तो वोल्टेज रिकॉर्डेड विल बी मैक्सिमम इन द लीड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, टू द मेन कार्डियक एक्सिस, टू द मेन, जिस वक्त करंट उस जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जिधर भी है उसके पैरेलल है, तो इट विल बी voltage recorded in lead will be minimum if the resultant vector is perpendicular. Parallel है तो maximum perpendicular तो कम हो जाएगा, जैसे हमने lead 3 में हमने देखा था उस पिछले लेक्चर में। So ये a few basic facts हमें ध्यान में होने चाहिए to understand the ECG। तो क्या क्या चीजें हम इम्पोर्टेंट हम आसानी से सिंपल, हमने कहा सिंपल जो इंटरप्रेट हार्ट रेट, हम आसानी से सिंपल मेथड है, वी कैन कैलकुलेट द हार्ट रेट फ्रॉम ECG, वी कैन डिटरमिन द रिदम, वी कैन एग्जामिन द रिदम कि रिदम है या नहीं, रिदम इज दी समथिंग रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलरिटी मौजूद है या नहीं है, रिदम खराब तो नहीं है, एरिदमिया, अगर वो रिदम खराब हो तो इसको एरिदमिया कहते हैं। वी विल टेक वन फुल लेक्चर और 2 लेक्चर्स इन एरिदमिया, ऑन एरिदमिया। तो रिदम हम देख सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे है या नहीं, एंड दी PR इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल मेथड है। हमने शुरू के ECG में कहा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द P वेव टू द बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, जिसमें P वेव और वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन PQ सेगमेंट भी शामिल है। PR इंटरवल, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देयर इज द मैक्सिमम लिमिट उसकी 0.2 सेकंड तक है, उससे प्रोलॉन्ग हो तो वी लेबल इट एज हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे। तो PR इंटरवल आसानी से हम कैलकुलेट करके, सिंपल मेथड है जिससे हम हार्ट ब्लॉक को डायग्नोज कर सकते हैं। PR इंटरवल इज नॉर्मली 0.12 to 0.616 होता है, लेकिन 0.2 तक भी जायज है, लेकिन अगर 0.2 से ज्यादा हो तो इट इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी हम देखेंगे वो क्या होता है। सो इट इज PR इंटरवल की सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। We can find out the duration of QRS complex, ये भी देखेंगे QRS complex का जिसकी ड्यूरेशन हम देखिए एक खाना या 1.5 खाना आता है, उसमें 0.06 सेकंड की ड्यूरेशन होती है, हमने पीछे कैलकुलेट किया था किसी जगह। तो उसकी ड्यूरेशन के डिफरेंट, अगर उसमें कार्डियक इम्पल्स का ट्रेवल इन द वेंट्रिकुलर मसल इज डिलेड या कहीं और जा रहा है तो वाइडन हो गया, तो दैट इज एबनॉर्मल। तो ये ड्यूरेशन भी ये सिंपल कैलकुलेशन है। हम खाने गिनेंगे QRS कॉम्प्लेक्स से टोटल खाने कितने कवर कर रहा है, ड्यूरेशन हम देख लेंगे। वोल्टेज भी देख सकते हैं, वोल्टेज कितनी आ गई है। तो वी कैन फाइंड आउट द कार्डियक एक्सिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी हमने बात की थी ना कि मीन रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक इंस्टेंट में, तो ये सारे जब दिस फ्लो इज फुल, करंट फ्लो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, हमने वो 4-5 स्लाइडें इकट्ठी देखी थी। थोड़ा डिपोलराइजेशन है, ज्यादा डिपोलराइजेशन है, वेक्टर की लेंथ चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। उस इन सब का मीन जो होगा दैट इज नोन एज द मीन कार्डियक एक्सिस। उस मीन कार्डियक एक्सिस को मैं कह रहा हूँ 59 डिग्री पर है आमतौर पर। नॉर्मल हार्ट का 59 डिग्री मेन कार्डियक एक्सिस है, उसकी तरफ हम जाएंगे, अब उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कार्डियक एक्सिस को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं ECG पे। वो कैसे डिटरमिन करते हैं, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। So we have to examine each wave and abnormality, especially the shape, direction, voltage, duration. P wave कैसी है, वो उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कि उसमें कोई नॉच तो नहीं आ गई, नॉर्मली वो डूम होती है, उसका राउंडेड होता है, एटसेट्रा। T wave भी इसका वोल्टेज, किसी चीज वोल्टेज बहुत कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऑल दैट वी कैन सी डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज में ये चीज, ये सारे डेटा चेंज होते हैं, ये क्राइटेरिया चेंज होते हैं। तो ST सेगमेंट स्पेशली हम देखेंगे। ST सेगमेंट हमने कहाँ से देखा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स ST सेगमेंट शुरू होता है। QRS कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड होने के बाद जो ही QRS S वेव जहां खत्म होती है, आगे जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का जो J पॉइंट से शुरू होता है वो सेगमेंट, अगर वो उस सेगमेंट को हम ST सेगमेंट कहते हैं। उसको स्पेशली हम देखते हैं कि ये एलिवेटेड तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, किस कंडीशन में, सम डैमेज टू द हार्ट, इंजरी टू द हार्ट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वी ऑब्जर्व एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द ST सेगमेंट, उसको भी देखेंगे। सो वी एग्जामिन द ST सेगमेंट
फॉर एलिवेशन और डिप्रेशन इन डिफरेंट। ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनको हम इलेबोरेट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम कैलकुलेट भी करेंगे। नॉर्मल वेरिएशंस, हमें आइडिया हो कि नॉर्मल ईसीजी के वेरिएंट्स क्या है। कि मिसाल के तौर पर पी वेव इज नॉर्मली इन्वर्टेड इन एवीआर, ये अभी भी आज भी डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इट इज एवीआर तो रिकॉर्ड हम यहां से कर रहे हैं, ये तो सारा कॉम्प्लेक्स ही उल्टा था। पी वेव भी आम तौर पर उल्टी होती है एवीआर में, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी उल्टा होता है। तो पी वेव तो दिस इज नॉर्मल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे उल्टा होना इज नॉट एबनॉर्मल। पी वेव का उल्टा होना कभी कभी सीधी भी होती है, लेकिन उल्टा होना इज नॉट एबनॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। पी वेव इज नॉर्मली इन्वर्टेड in AVR. P wave might be upright or inverted in or biphasic. Biphasic means कि वो दूसरी तरफ भी जा रही है, biphasic होते हैं, उसके देखेंगे biphasic wave क्या होती है। तो in lead 3, बाइपोलर लिम्ब लीड 3 में या AVL और AVF दोनों में, AVL और AVL और AVF दोनों में द पी वेव में बी इन्वर्टेड और मे बी अपराइट, दोनों बातें उसमें हो सकती हैं। दिस इज नॉर्मल वेरिएशन, दोनों, और कोई खराबी ना हो। ओनली इन्वर्शन ऑफ पी वेव इन दीज लीड्स इज नॉट एबनॉर्मल। सो व्हेन abnormal, अगर पी वेव अगर abnormal है, इट माइट बी इन्वर्टेड, जैसे हमने कहा ये इनमें इन्वर्शन हो जाना abnormal नहीं, अगर बाकी चीजें ठीक हैं तो। लेकिन और नॉर्मल मसलन लीड 1 में अगर ये इन्वर्टेड है, दिस इज abnormal. So when abnormal, it may be inverted. Say it is inverted in lead 1. लीड 1 में या लीड 2 में इन्वर्टेड हो तो दिस इज एबनॉर्मल। एंड ब्रॉड और नॉच्ड, ज्यादा वाइड हो गया या उसके ऊपर एक राउंडेड नहीं रही, नॉच रह गई, इसको पी माइट्रेल बोलते हैं। पी माइट्रेल या पी माइट्रेले इसको बोलते हैं। ये नॉच इसमें आ जाती है। डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन आगे हम कुछ ना कुछ देखेंगे हम क्लिनिकल स्लाइड में। टाल और पीक पी पल्मोनेले, वो भी हम एरिथमिया में या आगे हम देखेंगे एब्नॉर्मैलिटीज अपनी ईसीजी में, कुछ पी पल्मोनेले देखेंगे कि ये पीक राउंडेड होने के बजाय पीक वाली, उसको कहते हैं पी पल्मोनेले। दीज आर दी एब्नॉर्मैलिटीज, ये हम आसानी से देख सकते हैं। और फिर वो कंडीशन जिनमें ये पैदा हो सकती है वो भी हम बात कर लेंगे। और सम टाइम इट मे बी एब्सेंट। मिसाल के तौर पर ये पी वेव कब पैदा होती है? व्हेन ऐसे नोड से इंपल्स पैदा हो रहा है, इट इज ट्रैवलिंग इन दी एट्रियल मसल्स और पी वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, डिपोलराइजेशन। अगर ये ऐसे ब्लॉक है कहीं और से पैदा हो रहा है तो फिर पी वेव वैसे तो नहीं पैदा होगी ना, या तो बहुत छोटी होगी या बिल्कुल ही फ्लैट होगी या नजर ही नहीं आएगी। सो इट मे बी एब्सेंट और इनविजिबल, नजर ना आए, इतनी छोटी हो तो इन ब्लॉक। सो and it is replaced by flutter and fibrillation। ये हम देखेंगे, flutter भी देखेंगे, fibrillation भी देखेंगे। ये टर्म्स इसमें बहुत ही सार शेप्ड पी वेव, मल्टीपल पी वेव्स ऐसे भी आ सकती है। और फिर उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है। फिब्रिलेशन में तो फिर अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो वो तो रहता है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन किसको कहते हैं? वो सेंसेशन के तौर पर काम नहीं करता, एज वन यूनिट काम ना करे, डिफरेंट मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग सेपरेटली, सेंसेशन ना रहे तो उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो उसमें भी जाहिर है कि पी वेव ऐसी तो नहीं बनेगी ना, तो इट में बी रिप्लेस बाई फ्लटर, उसमें मल्टीपल वेव्स, कैसी कैसी वेव पैदा हो जाएंगी। तो ये दीज आर वेरिएंट्स, हम वेरिएशंस हम देखेंगे। जैसे हमने वो जो हमने एलेबोरेट किया था, पी वेव इज यहाँ तो सीधी है एवीएल में, पी वेव इज इन्वर्टेड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इन्वर्टेड हियर, और इसमें सब सीधे हैं। और इसमें भी हमने बात की कि कभी कभी पी वेव इसमें भी इन्वर्टेड हो सकती है। टी वेव, अब आ गया हम, टी वेव इज नॉर्मली अपराइट इन लीड 1, 2 and just lead V2, V3, V6, 1 and 2 bipolar limb leads में, और V3, 4, 5, 6 इन चारों लीड्स में टी वेव इज अपराइट, ये नॉर्मल है टी वेव है। लेकिन अभी हमने टी वेव इन्वर्टेड भी पीछे देखी थी, कब? एवीआर में इट इज इन्वर्टेड इन एवीआर में टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इन्वर्टेड है, पी वेव भी आमतौर पर इन्वर्टेड होती है, और टी वेव भी आमतौर इट इज इन्वर्टेड इन एवीआर। मे बी इन्वर्टेड और अपराइट, ये दोनों ऑप्शन हैं, दोनों हो सकते, दोनों नॉर्मल हो सकते हैं। मे बी इन्वर्टेड और अपराइट इन लीड 3 जो बाइपोलर लिम्ब लीड की लीड 3 है, एवीएल एवीएफ दोनों में। जैसे अब
जैसे उसका पी वेव भी ऑप्शन है, सीधी भी हो सकती है तो इन्वर्टेड भी हो सकती है, टी वेव भी ऐसी है, AVL AVF दोनों में अपराइट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। और V1 और V2 में तो आमतौर पर इन्वर्टेड ही होती है, लेकिन इन्वर्टेड भी हो सकती है, लेकिन अपराइट भी हो सकती है। यहां से रिकॉर्ड कर रहे हैं पी वेव, तो अपराइट भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर इन्वर्टेड होती है। इसमें V1 एंड V2 जो प्री कार्डियल लीड का पहला पोर्शन जो इधर है, तो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द करंट पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। The T wave should not be taller than 5 मिलीमीटर। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो याद रखें। 5 मिलीमीटर का क्या मतलब है? 5 खाने। 1 मिलीमीटर का छोटा खाना है ना, 5 खानों से ज्यादा ना होना चाहिए। एंड बाइपोलर लीड एंड 10 मिलीमीटर चेस्ट लीड। चेस्ट लीड में काफी बड़ा हो सकता है, हम चेस्ट लीड में बड़ा हो सकता है, लेकिन वो 10 से ज्यादा ना हो। और आम लिम लीड में, बाइपोलर लिम लीड में छोटी होती है, होनी चाहिए। इससे लंबी जो है दैट इज एबनॉर्मल। ये देखें ये कितने खाने आए हैं, 1 2 3। छोटे टी वेव में ये 1.5 खाना 2 खाने आए हुए हैं, आमतौर पर इतना होते हैं, 5 खानों से ज्यादा नहीं होते। ये AVL AVF में है, बाइपोलर लिम लीड्स में भी ये छोटी होती है। ये चेस्ट लीड्स में ये बड़ी हो सकती है। आप देखें चेस्ट लीड में यहाँ 7 खाने आ गए, 5 छोटे और ये 1 खाना ऊपर से 6 बड़े खाने आ गए। ये चेस्ट लीड में ये ज्यादा, मैक्सिमम इसकी यहाँ तक है कि ये 10 खानों से बड़ी नहीं होनी चाहिए टी वेव। नॉर्मल चेस्ट लीड्स में पी वेव ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो चेस्ट लीड्स में पी वेव देखें, V1 में पी वेव इज अपराइट एंड इन्वर्टेड भी नॉर्मल है। QRS कॉम्प्लेक्स तो आमतौर पर इन्वर्टेड है, और इसमें भी अपराइट है लेकिन इन्वर्टेड भी नॉर्मल है, और QRS कॉम्प्लेक्स तो इन्वर्टेड है, और इसमें बाकी तो ठीक ही है सारे। ये पी वेव जो ऊंची है, लंबी है। अब आ जाएं सिंपल कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट की कैलकुलेशन में हमें ये तो पता है कि नॉर्मल कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन इज 0.83 सेकंड। क्या मतलब है? 0.83 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो हार्ट रेट क्या होता है? 1 मिनट में कितने साइकिल है? 1 मिनट में सेकंड कितने हैं? 60 सेकंड है। इस 60 सेकंड डिवाइडेड बाय ये दिस duration of cardiac cycle, this will give us the number of cardiac cycle taking place in 1 minute। 1 मिनट में 60 सेकंड है और एक साइकिल पर 0.83 सेकंड टाइम लगता है, तो 60 को 0.83 पर डिवाइड करेंगे, this will give us the number of cardiac cycle per minute। so that's how we can तो हम ECG पर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ECG पर कार्डिक साइकिल का टाइम कहां से होगा? बिगिनिंग ऑफ 1 सिस्टोली टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सिस्टोली, बिगिनिंग ऑफ 1 डायस्टोली टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डायस्टोली, या बिगिनिंग ऑफ 1 पी वेव टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पी वेव, कुछ भी हो सकता है। एंड ऑफ 1 पी वेव टू एंड ऑफ नेक्स्ट पी वेव, ये सारे कार्डिक साइकिल है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन देखने का है 2 बड़ी वेव। सबसे बड़ी वेव तो हमारी आर वेव है ना, QRS कॉम्प्लेक्स की आर वेव, जो सबसे लंबी वेव भी है और उसका पीक भी एग्जैक्टली पॉइंटेड है। तो उनके दरमियान हम आर वेव की पीक से दरमियान में खाने जो गिन लेंगे एट द पीक ऑफ द आर वेव टू द पीक ऑफ नेक्स्ट आर वेव। कहीं से भी साइकिल तो हम कहीं से, ये साइकिल है यहां से शुरू करके एंड करके, यहां से शुरू करके एंड करें, या कहीं से भी शुरू करके एंड उसी जगह करें, दिस विल बी अ साइकिल। तो साइकिल हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पी वेव इज कार्डिक साइकिल। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका ये है कि 2 सबसे बड़ी आर वेव जो नजर आ रही है उनके पीक भी नजर आ रही है, उन एक आर वेव से अगली आर वेव तक हम दरमियान में खाने गिन लें। वो खाने गिनेंगे, हमें पता है सबसे छोटे खाने का ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकंड। तो वो खाने गिन लेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट दैट विद दैट विल गिव अस द RR इंटरवल। RR इंटरवल क्या होता है? कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन। 0.83 के बजाय 0.84 आए, 0.6 आए, व्हाटएवर, वो तो हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। हार्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, हार्ट रेट अगर कम होगा तो इट विल बी, अगर 60 है, इफ द हार्ट रेट इज 60, तो इसका क्या मतलब है? 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाय 60 इट विल गिव अस द हार्ट रेट 60। तो हम उसको डिवाइड कर सकते, 60 डिवाइड बाय 1 सेकंड, 1 सेकंड में करेंगे। तो RR इंटरवल इज कैलकुलेटेड। आसानी के लिए ECG में उसके खाने गिन के कैलकुलेट कर लो। सो हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे? RR इंटरवल हमने कैलकुलेट किया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय RR इंटरवल।
60 divided by वो नंबर ऑफ स्क्वायर गिन के मल्टीप्लाई बाय 0.04, दिस विल बी आर इंटरवल। 10 खाने हैं तो कितना होगा, 0.4 हो जाएगा। 15 खाने हैं तो 0.6 हो जाएगा, 15 6 60, 0.6 हो जाएगा। सो हम छोटे खाने गिन के उसको 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस द आर। मिसाल के तौर पर हार्ट किसी का आर इंटरवल इतना ही आता है, 0.83 सेकंड आता है। हम खाने गिन लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 से, तो हमारे खाने आते हैं 0.83 सेकंड आता है। तो हम कैलकुलेट करें 60 डिवाइड बाई 0.83 सेकंड, यू कैलकुलेट इट इज 72 बीट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है, वी कैन कैलकुलेट। अब जब टैकीकार्डिया होगा, दिस विल बी शॉर्टेंड, दिस इज आर, दिस विल बी 0.6, तो 60 डिवाइड बाई 0.6 इट विल बी 100 हार्ट रेट हो जाएगा। और अगर ये लंबा हो जाए 0.8 के बजाय 0.9 हो जाए, इट विल बी हार्ट रेट विल बी 50 समथिंग, ये कम हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द हार्ट रेट। ये तो एग्जैक्ट मेथड है कैलकुलेट करने का, लेकिन बहुत आसानी के लिए यूं आप ईसीजी खोलते हैं ना, कौन खाने गिन के 0.04 से मल्टीप्लाई करता रहेगा। यू कैन, इससे ज्यादा आसान फार्मूले भी मौजूद है। ये तो एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकली हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये फार्मूला है, लेकिन आसानी के लिए ये है 2 फार्मूला हम ईसीजी पर देते हैं। क्या करते हैं उसमें है काम, वो भी यही है। वी नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव्स, आर वेव के दरमियान छोटे स्क्वायर नहीं गिनते, हम बड़े स्क्वायर गिन लेते हैं। वो आपको पता है ना, छोटे बड़े स्क्वायर में 5 छोटे स्क्वायर होते हैं, वो छोटे बड़े स्क्वायर्स को गिन लेते हैं। जितने भी बड़े स्क्वायर्स आए 300 डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वो हमें हार्ट रेट देगा। मैं अब ये कैलकुलेट करके बताता हूं ये है क्या। 1 मिनट में ये 300 में 300 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये क्या आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाई 300 बिग स्क्वायर है ना, स्मॉल स्क्वायर कितने आएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा। इसको भी छोड़े, 5 बड़ा स्क्वायर कितना टाइम शो करता है, 0.2 सेकंड हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 0.04 सेकंड इज दी ड्यूरेशन ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर, और अगर 5 स्क्वायर बड़े स्क्वायर में आते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.04 इट इज 0.2 सेकंड का बड़ा स्क्वायर है। तो 300 स्क्वायर का क्या मतलब है, बड़े स्क्वायर आ जाए तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स इन 1 मिनट। ये है वही 1 मिनट में इतने स्क्वायर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स हम इसमें कैलकुलेट करें कितना आता है, ये देखें। ये जो 2 आर इंटरवल है, 2 आर इंटरवल है, इनके दरमियान इस वाला से कैलकुलेट, ये पीक पे है 1 2 3, थोड़ा सा आगे भी है 3, कोई कर ले, फर्ज कर लेते हैं ये 3 300 डिवाइडेड बाई 3, ये 300 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल गिव अस द हार्ट रेट। कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाई 3 इट इज 100। इस ईसीजी में हार्ट रेट इज 100 बीट्स पर मिनट। छोटे स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर लें तो ये आसान हो गया ना, कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर हमने कैलकुलेट किए, ध्यान में हमारा 300 है, 3 बिग स्क्वायर आ गए, 100 हार्ट रेट हो गया। लंबी दौर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रही। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा फार्मूला स्मॉल स्क्वायर को गिनने का है। स्मॉल स्क्वायर को गिनने का तरीका क्या है, 1500 कहां से आ गया, एक्चुअली वो स्मॉल स्क्वायर दिस मल्टीप्लाइड बाय 5 विल दिस, और नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आर बेस, बात वही होगी। 1500 छोटे स्क्वायर गिनो या 300 बिग स्क्वायर गिनो, दोनों एक ही बात है। तो बड़े स्क्वायर गिनने हैं तो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव, और अगर छोटे स्क्वायर गिनने हैं तो छोटे स्क्वायर गिन लो, तो उसी तरह आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इसमें हमें पता नहीं चल रहा बड़े स्क्वायर कहाँ पे हैं, यहाँ पे गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24। अब 1500 डिवाइडेड बाई 24, मैं 25 करता हूं आसानी के लिए, 25 का टेबल आसान है ना, 25 करता हूं, दिस विल बी 1500 डिवाइडेड बाय 25 6 आर 150, और फिर आगे 0 लगाएंगे 60, हार्ट रेट विल बी 60। इसमें देखें हार्ट रेट विल बी 60, इसको डिवाइड कर लें तो अगर उसका नंबर ऑफ 25 स्क्वायर को कैलकुलेट करें तो 1 सेकंड आता है।
1 सेकंड आता है, 1 सेकंड आता है तो 60 डिवाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू पिछला फार्मूला जो हमने देखा था 60 डिवाइड बाई आर इंटरवल इन सेकंड, उस तरह भी यही जवाब आएगा। तीनों फार्मूले से जवाब वही आएगा। ये जरा रफ है क्योंकि एग्जैक्ट देखे ना मैम ने ये 1 2 3 के बजाय वो थोड़ा सा आगे नहीं गिना था, मैंने आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा आसानी के लिए। एग्जैक्ट वही है जो पिछली स्लाइड पे हमने देखा था। तो वी कैन कैलकुलेट द हार्ट रेट बाय दीज 3 फार्मूली। एक फार्मूला तो एग्जैक्ट है 60 डिवाइडेड बाई आर इंटरवल इन सेकंड्स, वो दैट इज द एग्जैक्ट फार्मूला। और जल्दी से देखने के लिए 300 डिवाइडेड बाई बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव और 1500 डिवाइडेड बाई स्मॉल स्क्वायर, दैट विल गिव अस द हार्ट रेट। So that's how we calculate the heart rate from ECG. वैसे जब आपकी नजर पड़ती है ना, आपको जब इतना खुला खुला नजर आए तो इसका मतलब है हार्ट रेट कम है। ये अभी हमने कैलकुलेट किया, इसमें 60 आ रहा है, इसको कैलकुलेट किया तो ये 100 आ रहा है, तो वो ज्यादा है। तो ये बेसिक फ्यू कैलकुलेशन हैं, इसको हम जारी रखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी की और बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। हम इसमें इंटरप्रेट करेंगे ये कार्डियक एक्सिस की कैलकुलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ये मीन कार्डियक एक्सिस, जिसको कार्डियक एक्सिस इसको बोलते हैं, मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल, उसी को कार्डियक एक्सिस बोलते हैं। जो मैंने बोला है कि 59 सेकंड्स का होता है, 59 डिग्री पे होता है। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।